transcend geographical barriers, which is very important, and making learning accessible to country's audience. We all understand that NHA is doing PMJY for implementing this Ayushman Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Jan Arogya. We have a basically entire role of preparing these packages of cancers and other diseases as well. And we are also trying to basically make maximum thing accessible through these packages. That is one thing which is very important. PMJ, we see at NHS, see the implementation of this PMJY as a holistic approach. It's not like that we are only talking about the management part, but we are also taking care of the prevention because it is important because the burden is too much. And if we talk about health economics, as per the health economics, it's important that we talk about prevention as well as the management program. Now, when we talk about Nirantar Shiksha, basically, we are trying to feel that maximum number of people are educated and with the health related topics, because health, as we say, it's a health is wealth. We have been hearing from the past that health is wealth, but we don't care about our health, and we thought that this is the right way that we let people know that how these people can be educated and what are the benefits they can get from the government side. That is one aspect, that how the PMJY is going to help the people on the regular basis. And so we thought that it's both our honor and a responsibility that we unite and fight against one of the most formidable challenges of our time, that is cancer. And it's not just a disease, but it affects millions of people, families, and community. But it is also a fight of incredible resilience, strength, and hope as well. When we talk about it, cancer, WHO says that basically is a leading cause of death worldwide, accounting nearly to 10 million people deaths in 2020 and nearly 1 in 6 deaths. Around one third of the deaths from cancer are due to tobacco use, high body mass index, alcohol consumption, low fruit and vegetable intake, and lack of physical activity. In addition, air pollution is an important risk factor for lung cancer. This is a time the theme of World Cancer Day was 2025 was united by the unique and highlights of the valuable individualized patient-centered care in the fight against cancer. AIMS is one of our prestigious institutions. So today we have Dr. Sameer Bakshi, and we are not gathered only to raise awareness, but to empower the patients to know with the knowledge, support, and compassion both. Three things are very important when we talk. And everybody, we feel that everybody somewhere or other is touched by this disease. So it is not the powerless fight in this fight. We have good research, we have good detection, we have most importantly the power of hope. We have the potential to transform lives and change the future. And I will like to enhance here that Dr. Bakshi has been working for a very long time in this area. He's the head of an oncology and over there at AIMS. And he has kindly consented to give the uh, he has kindly consented to give us time because he's very busy with this tight schedule. He has come forward, and he has come forward for this talk, and he wants to make our people aware what are the new technologies what we are having during the when we do about the cancer treatment. And we are making, I mean, we are making him closer to the community, because important is that people should learn from him. His wide experience, his expertise it should not be restricted to one place. Rather, it should be communicated to the entire country, which is very important. And we are regularly having these shikshas because Nirantar Shiksha just to regulate and make people aware that what exactly is needed today in the present time. So thank you, Dr. Bakshi, for joining us. And I would like to, I mean, we have a very discussion because your time is more important and precious to us. And everybody knows about you, because when we circulated, it was like that we tried to circulate your small CV also, Thank you, what ma'am. you have been doing in the past years. And it is a pleasure that you have joined us, because we have a very good package of NHA for this cancer. But now the time is when people should avail it also whenever it is required. Hope ज्यादा लोगों को जरूरत ना पड़े, लोग समझ जाएं, प्रिवेंशन पे ही काम करें तो जरूरत ना पड़े, और एक समय ऐसा है कि हम इस प्रॉब्लम से मुक्ति भी पा सकें। तो आज आज आपको लगेगा कि पूरे देश से सभी लोगों से जुड़े हुए हैं लोग। यू विल फाइंड एवरीबडी, आई मीन यू विल फाइंड the doctors also, paramedics also, you'll find the nursing staff also who are going to take मतलब who treat in your
सुपरविजन. सो एवरीबडी हैज जॉइंड अस, एंड ये स्टेट से लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा दोनों ही भाषाओं में बात करना होगा, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. सो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स स्टार्ट विद द, सो ओवर टू यू डॉक्टर बख्शी. थैंक यू सो मच. धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं अपनी स्लाइड्स शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर मैं ये शेयर करता हूँ। मैं एक सेकेंड, एक बार मैं देख लूं कि मेरी स्लाइड्स चल रही हैं कि नहीं। ये चल रही हैं स्लाइड सबके लिए, और मेरी आवाज यस आ यस रही है? यस सर, यस ठीक सर, यस आपकी सर, इट इज आवाज भी आ रही है ऑडिबल। और आपकी स्लाइड्स भी चल रही हैं डॉक्टर ठीक है, बख्शी. थैंक यू. चलिए, थैंक यू। तो आज का जो मैं अगले हाफ एन आवर में आई टॉक टू यू अबाउट अर्ली डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड मॉडर्न थेरेपी ऑफ कैंसर। फर्स्ट वर्ड, व्हाट इज कैंसर? सो कैंसर, हम हमारे सेल्स हमेशा डिवाइड कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं जब हमारे सेल इस प्रकार से डिवाइड करे कि देयर इज नो कंट्रोल एंड इट विल गो बियॉन्ड बाउंड्रीज एंड इट इन्वेड्स द अदर टिश्यूज, तब उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो ये एक एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है जो बिना कंट्रोल के ग्रोथ हो रही है और अपनी सीमाओं के बाहर जा रही है। सबसे कॉमन कैंसर अगर हम देखें तो मेल्स में दो हैं, एक तो लंग कैंसर और एक ओरल कैविटी का कैंसर। और फीमेल्स में देखें तो ये ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर कहीं ज्यादा है, और अगर हम गांव में जाएं तो सर्वाइकल कैंसर ज्यादा आता है। अब बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस की। अब देयर आर थ्री वेज इन विच कैंसर में बी डायग्नोज्ड अर्ली। अब मैं आपको तीन टर्म्स इंट्रोड्यूस करता हूं। एक है स्क्रीनिंग, दूसरा है टेस्टिंग, और तीसरा है हम सबकी अवेयरनेस टू नो व्हाट इज नॉर्मल फॉर योर बॉडी। मैं इन तीनों पे बात करना चाहता हूं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि बॉडी में ना कोई सिम्टम है, ना कोई साइन है जो डॉक्टर डिटेक्ट कर पा रहा है, लेकिन येट द पर्सन गेट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टेस्टेड एज पर रिकमेंडेशंस। तो कोई भी सिम्टम नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट या जो सब्जेक्ट है वो जाता है, अपने आप को टेस्ट कराता है और देखता है मुझे कोई बीमारी है या नहीं। इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। टेस्टिंग है कि सब्जेक्ट को कोई सिम्टम हुए या कोई साइन आए और डॉक्टर ने बोला कि आप जाके अपने आप को इन्वेस्टिगेट करो। सिम्टम ऐसा है जिसमें पेन हो गया, पेन में लोग जाएंगे। एनीमिया हो गया तो भी लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। फीवर चल रहा है तो भी लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो तीसरा पार्ट है टू नो व्हाट इज नॉर्मल फॉर योर बॉडी। अब किसी को हो सकता है ब्रेस्ट में लंप आए, तो वो सिम्टम नहीं पैदा करेगा, लेकिन जो लेडी है उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो उसके लिए नॉर्मल नहीं है। सो टू नो व्हाट इज नॉर्मल फॉर योर बॉडी, अगर वो कोई चीज एबनॉर्मल या हट के आई है तो आपको डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगला सवाल आता है, इज कैंसर प्रिवेंटेबल? हम कहते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर मैंने बोला कि सर्वाइकल कैंसर गांव में ज्यादा है और ब्रेस्ट कैंसर शहरों में ज्यादा है, तो कुछ तो लाइफस्टाइल से लिंक्ड है, तभी ये हो रहा है। अब बात आई प्रिवेंशन की, तो 30% हमारे कैंसर आर टोबैको रिलेटेड। उसमें से अगर हम लंग कैंसर को देखें तो 70% ऑफ लंग कैंसर इज लिंक टू स्मोकिंग। एक होता है सेकेंड हैंड स्मोक, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक। तो यदि बहुत सारे लोग कैंसर आई मीन स्मोकिंग करते हैं तो उसका इंपैक्ट सराउंडिंग्स पर भी होता है। उस दिन मेरी बात हो रही थी, यूएस से कोई लोग आए हुए थे, तो उनका कहना था कि यूएस में स्मोकिंग हैज गॉन डाउन। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि आजकल स्मोकिंग करने के लिए जो जगह है वो इतनी कम कर दी है सरकार ने वहां पर, कि किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसी जगह जाने के लिए यूएस में जहां वो स्मोक कर सके। तो अगर आपने
इतनी सारी जगहें बना दी जहां स्मोक कर ही नहीं सकते, तो स्मोकिंग इंसिडेंस कम हो गया है। लेकिन इंडिया में और इंडिया की सराउंडिंग कंट्रीज में स्मोकलेस टोबैको बहुत कॉमन है, टोबैको च्यूइंग बहुत कॉमन है, जो कि और किसी वर्ल्ड में कहीं ज्यादा और कॉमन नहीं है, और इससे ओरल इसोफेजियल कैंसर्स होते हैं। 20% इंफेक्शन से रिलेटेड है। इनमें एक आ गया सर्वाइकल कैंसर और एक हो गया लिवर कैंसर। अब प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे हैं कि हम वैक्सीनेशन कराएं इन इंफेक्शंस के लिए और एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। इसका मैं जिक्र करूंगा जैसे मैं आगे बढ़ता हूं। स्मोकिंग की जहां मैं बात कर रहा हूं, आपको स्मोकिंग बताऊं, 14 प्रकार के कैंसर वो कॉज कर सकता है, राइट फ्रॉम लंग to oral to larynx to esophagus to pancreas to stomach to kidney to bladder। मतलब कोई ऐसा कैंसर नहीं जो स्मोकिंग से लिंक्ड नहीं हो या प्रभावित ना हो। ये आपको फोटो दिखा रहा है एक बंदा जो स्मोक करता है और एक बंदा जो स्मोक नहीं करता। जो काले रंग के लंग्स हैं वो उनके हैं जो स्मोक करते हैं। ये एक ग्राफ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो ब्लू लाइंस हैं वो स्मोकिंग बता रही है। पिछले 50 सालों में स्मोकिंग का इंसिडेंस मेल्स में कहां जा रहा है, तो ओवरऑल मेल्स का इंसिडेंस कम हो रहा है, जबकि वो फीमेल से ज्यादा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इंसिडेंस देखें तो मेल्स में स्मोकिंग नीचे जा रही है हमारे देश में। ऑन दी अदर हैंड विमेन में स्मोकिंग बढ़ती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बात आती है खाना। हाउ डज फूड इन्फ्लुएंस कैंसर, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? तो जो जिसको हम रेड मीट कहते हैं, यानी मीट जो गोट मीट, पोर्क, बीफ, ये जो रेड मीट होते हैं, इनका लिंक पाया गया है आंतों के कैंसर से, कोलोन कैंसर से। जो व्हाइट मीट है जैसे चिकन, फिश, इनका किसी कैंसर से लिंक नहीं पाया गया है। तीसरा, स्मोक्ड आइटम्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई आइटम्स को हम स्मोक करके स्टोर किया जाता है, उनसे भी कैंसर बढ़ता है। स्पाइसेस ज्यादा खाना, साउथ इंडिया में स्टमक कैंसर कॉमन है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। मैं कुछ आपके सामने एमसीक्यू पेश करूंगा, आप इसके आंसर अपने मन में रखिए, लेकिन मैं आपको आंसर बताऊंगा जरूर। ओवरवेट कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम एंड कैंसर। इसका सही जवाब है, ये ट्रू है फॉर बोथ हार्ट डिजीजेस एंड कैंसर। तो यानी मोटा होना खराब है दोनों के लिए। ये आपको जो कार्टून है ये दिखा रहा है कि कौन सा कैंसर कितना प्रिवेंटेबल है। सर्विक्स कैंसर ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंटेबल है, लंग कैंसर 90%, ओरल कैविटी 90%, ईसोफेगस 90%। ये दूसरी तरफ के कैंसर ये हैं, इनको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। ब्रेन ट्यूमर, प्रोस्टेट, ल्यूकीमिया, ओवरी, इन कैंसर को प्रिवेंट करना ना के बराबर है, इनको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 40% कैंसर प्रिवेंटेबल है। हेंस कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। अब मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उनका मैं आंसर भी बताऊंगा, ये ट्रू फॉल्स है। कैंसर स्प्रेड्स डेली एंड सो ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड द सेम इवनिंग। ये स्टेटमेंट गलत है। बायोप्सी ऑफ द ट्यूमर लीड्स टू स्प्रेड ऑफ कैंसर, ये एक धारणा है, ये भी गलत है। वी कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन एंड नो अदर टेस्ट इज नीडेड। आजकल बहुत सारे मरीज आते हैं पेट स्कैन की इमेज करा के,
और बोलते हैं हमें बोला गया है कैंसर है, तो हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ये भी धारणा गलत है, क्योंकि पेट स्कैन एक फोटो है। इन्फेक्शन में भी पेट स्कैन पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए ये धारणा सही नहीं है कि पेट स्कैन हुआ, उसमें कुछ पाया गया और आप एकदम ट्रीटमेंट चालू कर दें। कैंसर कैन बी कंट्रोल्ड बट नॉट क्योर्ड, ये भी गलत स्टेटमेंट है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनको हम क्योर कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ऑफन गेट्स क्योर्ड, ये सही जवाब है, ये सही स्टेटमेंट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में अगले सेमिनार में बात होगी, लेकिन मैं एक दो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट जरूर बताना चाहूंगा। ऑल ल्यूकीमियाज नीड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑल ल्यूकीमिया जब वो रिलैप्स होते हैं, दे नीड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये भी गलत स्टेटमेंट है, लेकिन ज्यादातर इनमें से उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक प्रकार की सर्जरी है, ये भी गलत धारणा है। वो सर्जरी नहीं है, ये दवाइयों से किया जाता है और इसमें कोई काटा पीटी नहीं होती। अब बात आती है लेवल्स ऑफ कैंसर प्रिवेंशन। इसमें मैंने 3 वर्ड्स आप देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब है कि हम कैंसर होने ही ना दें। कैंसर मतलब यानी हम अगर टोबैको को खत्म कर दें तो कुछ प्रकार के कैंसर होंगे नहीं, वैक्सीन आ जाए तो भी कुछ प्रकार के कैंसर नहीं होंगे, अगर हम सनस्क्रीन यूज करें, जो बहुत व्हाइट कलर के लोग होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो स्किन कैंसर नहीं होंगे। तो इसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है कि आप कैंसर को स्क्रीन करके जल्दी पकड़ें, यानी जैसे आपने ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी कराई या पैप स्मीयर कराया सर्वाइकल कैंसर के लिए। और टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब है कि कैंसर हुआ, उसको आपने हटा दिया सर्जरी करके, लेकिन अब आप दवाइयां देंगे कि वो कैंसर आगे बढ़े ना। कुछ कॉमन कैंसर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, उनमें से एक है सर्वाइकल कैंसर। मैंने कहा ये गांव में ज्यादा होता है बनस्पत की शहरों में। तो ये क्या कारण है? उसके जो मेजर कारण हैं, हाइजीन। कैंसर को इंक्रीज करने में, अगर किसी लेडी की हाइजीन पुअर है या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिससे वायरल इंफेक्शंस होंगे, और जो की वायरल इंफेक्शंस हैं वो है एचपीवी इंफेक्शन। तो एचपीवी इंफेक्शन के अगेंस्ट एक वैक्सीन आ गई है, और अगर हम इस वैक्सीन को दें तो ये कैंसर पोटेंशियली प्रिवेंट किया जा सकता है। हाइजीन का लिंक कई बार सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से पाया गया है। तो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में इस कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है। उधर दूसरी तरफ अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो ये वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल से बढ़ता है। और वो क्यों बढ़ता है कि अगर किसी लेडी में ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बढ़े तो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। अगर आप देखेंगे आज से 30-40 साल पहले, जो जो 50-60 साल की उम्र के लोग इधर बैठे होंगे, अगर वो याद करें तो उस समय मीनार एक लड़की का आमतौर पे 13-14 साल पर आता था। आज की डेट में वो 9-10 साल पे आ जाता है, तो यानी जल्दी आता है। वहीं मीनोपॉज पहले जल्दी होता था, अब उसकी अपेक्षा लेट हो रहा है। शादियां लेट हो रही हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग कम हो गई। ये सारी चीजें एक लेडी में ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बढ़ाती हैं, और ये अगर आप देखें तो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, शहरों में ये ज्यादा कॉमन है, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर भी ज्यादा कॉमन है। आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है 120 हर 100,000
लेडीज के ऊपर। दिल्ली में इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस है, जो कि इंसिडेंस है 40। तो 40 जबकि 120 से 1/3 है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा है। मैं बात वापस सर्वाइकल कैंसर पे जाता हूं। तो एचपीवी वैक्सीनेशन आमतौर पे यंग एज में ले लेना, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये वर्ल्ड की पहली एंटी कैंसर वैक्सीन कहलाई जाती है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस बी को रोकती है, और हेपेटाइटिस बी सिरोसिस पैदा करता है। अगर आप उस सिरोसिस को रोकते हैं तो आप लिवर कैंसर को भी रोक सकते हैं। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने से लिवर कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब बात आती है कैंसर स्क्रीनिंग इन इंडिया। आमतौर पे स्क्रीनिंग आप उन्हीं कैंसर के कर सकते हो जहां पर अर्ली डिटेक्ट करके फायदा हो। तो 3 कॉमन कैंसर जिस पे सरकार का बहुत जोर है कि हम उसको स्क्रीन करें, उनमें से एक है ब्रेस्ट कैंसर, जिसके लिए मैमोग्राफी की जाती है, और एक ब्रेस्ट खुद का एग्जामिनेशन जो एक लेडी को सिखाया जाता है या वो डॉक्टर करता है। दूसरा है सर्वाइकल कैंसर, जिसके लिए एक पैप स्मीयर किया जाता है, और ये एचपीवी वायरस के लिए टेस्टिंग की जाती है। और एक है मुंह का कैंसर, जिसके लिए डॉक्टर रोशनी द्वारा, टॉर्च द्वारा एग्जामिन करता है, और अगर कोई भी सस्पिशियस लीजन पाया जाता है तो वो उसको आगे हायर सेंटर पे भेजता है और उसकी बायोप्सी की जाती है। ये 3 कैंसर है जिसपे सरकार का काफी एम्फेसिस है कि हम इनको जल्दी पकड़ सकें। सर्वाइकल कैंसर के लिए एक तो है पैप स्मीयर, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट करता है, और वो देखता है कि सर्विक्स में कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं दिख रहे। ये आमतौर पे हर 3 साल में एक बार कराना चाहिए, और ये बहुत सस्ता टेस्ट है। एक महंगा टेस्ट है जो वायरस के लिए डिटेक्ट करता है, वो हर 5 साल में एक करा सकते हैं। आमतौर पे ये टेस्टिंग 30 से 65 साल की उम्र के बीच में करनी चाहिए। अब आती है बारी ब्रेस्ट कैंसर की। इसके लिए जो कॉमन टेस्ट जो डिटेक्शन के लिए यूज होता है वो है मैमोग्राफी, यानी ब्रेस्ट का एक्सरे, सिंपल भाषा में। अगर आप ये मैमोग्राम देखें राइट साइड में, तो एक आपको डेंस वाइट डेंसिटी दिख रही होगी। ये जो डेंसिटी है ये संकेत देती है कि शायद इसमें कैंसर हो। तो यदि मैमोग्राम में ये दिखता है तो इसकी एक अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक बायोप्सी की जाती है, और फिर उसके ऊपर अगर उसमें आता है तो आप एक्शन लिया जा सकता है। आमतौर पे एक लेडी में मैमोग्राम 45 साल की उम्र से स्टार्ट करते हैं, और एक बार जब वो 55 साल की हो जाती है तो आप उसका इंटरवल बढ़ा देते हैं। आपको मैं जस्ट ये स्लाइड दिखाना चाहता हूं, वो आपको बताएगी कि इंडिया और यूएसए में ब्रेस्ट कैंसर किस स्टेज में पकड़ा जा रहा है। अगर आप देखें यूएसए में अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, वहां का ऑलमोस्ट 90% कैंसर अर्ली स्टेज, यानी बहुत ही छोटा कैंसर होता है। लेडी जल्दी पकड़ में डॉक्टर के पास जाती है, और उसका ट्रीटमेंट आमतौर पे एक सर्जरी द्वारा आराम से किया जा सकता है। अब आप इंडिया का अगर देखें तो 75% से भी ज्यादा कैंसर एडवांस्ड या फैला हुआ कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर का। अब देख रहे हैं 52 और 24 मिला के बना 76%, ये आपका एडवांस्ड कैंसर के रूप में पाया जाता है। ये ओरल कैविटी का कैंसर है, जिसमें अगर कोई भी बड़ा छाला दिखे, अगर डॉक्टर को सस्पिशियस लगता है तो वो हायर सेंटर में भेजे और वहां पर उसकी बायोप्सी की जा सकती है। आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि हम लोग अपना कितना ध्यान रखते हैं, जो हमें रखना चाहिए हम कितना ध्यान रख रहे हैं स्क्रीनिंग के लिहाज से।
तो अगर मैं बोलूं कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कितनी हो रही है, 1% से भी कम, यानी 100 में एक लेडी से भी कम अपनी देखभाल स्क्रीनिंग के द्वारा करा रहे हैं। यही अगर हम देखें सर्वाइकल कैंसर में तो मुश्किल से 2%, ओरल कैंसर में भी 1%, यानी 99% लोग स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो कैंसर तो एडवांस्ड ही मिलेगा ना। तो एक मैं समराइज करता हूं हाउ टू प्रिवेंट कैंसर। अवॉइड टोबैको एंड अल्कोहल, अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वजन अपना कम करिए, वैक्सीनेशन कराइए, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उसको अवेल करिए, और अपने बारे में जानिए कि हमारी बॉडी में क्या चीज अलग है, हो रही है। अगर अलग हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। हम तो ये कहेंगे, अगली मदर्स डे में आजकल लोग कभी कुछ गिफ्ट देते हैं, कभी कोई हैम्पर देते हैं। हम कहेंगे आप अपनी मदर को अगली मदर्स डे गिफ्ट मैमोग्राफी का फ्री टेस्ट करवाइए। अब आती है बात ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के आपने सुना होगा, एक सर्जरी है। सर्जरी से आप एक सॉलिड ट्यूमर हटाया जा सकता है और काफी हद तक कैंसर क्योर किया जा सकता है। एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन से आप एक प्रकार की एक्सरेज देते हैं और उससे कुछ रेडिकल्स शरीर में बनते हैं जो कैंसर को डैमेज करते हैं और मार देते हैं। ये एक मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। ये एक इंडियन साइंटिस्ट है जो ब्रिटिश टाइम में अमेरिका गए थे, और वो इसलिए गए थे क्योंकि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लिया था, तो इनको डॉक्टर बनने नहीं दिया अंग्रेजों ने। तो ये किसी तरह अपने फादर इन लॉ की हेल्प से अमेरिका चले गए, वहां पर में काम किया और कई प्रकार के ड्रग बनाए। इनका नाम है येल्ला प्रेगडा सुब्बाराव। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले साइंटिस्ट थे जो अमेरिका गए, और वहां उन्होंने कई प्रकार के ड्रग बनाए जो कि ब्लड कैंसर में भी काम आते हैं, और भी कई प्रकार के ड्रग, फाइलेरिसिस के ड्रग, टेट्रासाइक्लिन, ना जाने कितने ड्रग। और इनके ऊपर भारत सरकार ने एक स्टैंप भी बनाया। अब इसका मैं बताना चाहता हूं कि इनके इम्पैक्ट से जो एक ब्लड कैंसर का आउटकम है, कहां एक तरफ 10% मरीज नहीं बचते थे, और आज की डेट में 80% से ऊपर मरीज इसके हम क्योर कर पाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में नाइट्रोजन मस्टर्ड यूज हुई, वही दवाई लोगों को मारने के लिए यूज हुई, और वही दवाई लोगों के कैंसर को मारने में भी यूज हुई। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो कॉमन केमोथेरेपी ड्रग्स हैं, ये हमारे नॉर्मल सेल्स को भी मारती हैं। हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे डायरिया होता है, मुंह में छाले पड़ते हैं, हमारे बोन मैरो के सेल्स को कम करती हैं, वहां के सेल्स कम हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं। कहते हैं बहुत टॉक्सिक हैं, और हैं भी। तो ये है कि आपने जब एक बम का गोला छोड़ा तो आसपास के भी कई लोग उसमें मर जाते हैं। अब एक आती है टारगेटेड थेरेपी। आपने उसी कैंसर सेल को मारना है और किसी सेल को नहीं मारना, उसको कहते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो एक हो गई आपकी सर्जरी, एक हो गई रेडियोथेरेपी, एक हो गई कीमोथेरेपी, एक हो गई आपकी टारगेटेड थेरेपी। यानी एक ही कैंसर पे कोई चीज आपने पाई और उसको टारगेट करा। सबसे इसका जो उदाहरण मैं देना चाहूंगा, एक किस्म का ये ब्लड कैंसर है, सीएमएल। जब मैं पढ़ाई कर रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 1995 2000 तक, इस बीमारी में अगर ट्रांसप्लांट नहीं करते थे तो कोई भी मरीज ठीक होता ही नहीं था। तो सोचिए कितनी कठिन बीमारी थी। और आज की डेट में इसके अगेंस्ट जो दवाई है, एक टैबलेट लेनी है,
मैं तो ये बोलूंगा थायराइड की बीमारी ट्रीट करना ज्यादा कठिन है बनस्पत की इसको। और आज की डेट में इन लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो एक नॉर्मल इंसान के बराबर है जिसको कोई कैंसर नहीं है, बस एक गोली टैबलेट खानी है। तो ये इंपैक्ट है टारगेटेड थेरेपी का जो आया है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो डिस्कवर किया वो है इम्यूनोथेरेपी। आपने सुना होगा, सब कहते हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है उससे डिटरमिन करता है कि हमारी बॉडी कितना फाइट कर पाएगी कैंसर को। ये एक लिहाज से सही है। और मैं आपको बताऊं ये क्या चलता रहता है। जब भी कैंसर होता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ाई करता है। जब वो हार जाता है तो कैंसर के सेल बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो वो कैंसर को सप्रेस करता है। इम्यूनोथेरेपी जो दवाई है वो एक किस्म की, समझिए आप सिंपल भाषा में, ऐसी दवाई है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर को मारने के लिए अलाउ करती है। जो बाधाएं आ रही हैं कि वो मार ना सके, उन बाधाओं को हटाता है कि जिससे बॉडी की नॉर्मल इम्यून सिस्टम कैंसर को मार सके। ये सिंपल भाषा में इम्यूनोथेरेपी है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक बीमारी है स्किन कैंसर। जब ये स्टेज 4 की बीमारी आती थी आज से 15 साल पहले, तो हम कहते थे कि जी इसमें मरीज को हम बोलते थे कि जी 10% चांस भी नहीं है सरवाइव करने का। लेकिन आज की डेट में जिसके पास पैसा है और ये दवाई ले सकता है, तो अगर आप ऊपर के 2 कर्व्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% लोग इस बीमारी के कैंसर फैले होने के बावजूद क्योर किए जा सकते हैं। आजकल आपने बहुत सब सुना होगा, एक कार टी सेल भी आ रहा है। वो एक किस्म का, समझिए, एक लिविंग है। आप एक सेल को निकालते हैं, उसको रीप्रोसेस करते हैं और टी सेल में एक्टिवेट करके वापस शरीर में डालते हैं कैंसर को मारने के लिए। इससे ज्यादा मैं इस बारे में नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ही चल रहा है, यूज हो रहा है, अभी अभी बन रहा है और हम लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। कैंसर का बैटल है जो हम ओवर टाइम जीतते जा रहे हैं। अगर आप देखें, ये बच्चों के कैंसर में सर्वाइवल जो आज से 50 साल पहले 40% था, आज की डेट में 80% पे पहुंच रहा है। अगर आप सारे ग्राफ देखें तो ज्यादातर ग्राफ ऊपर ही जा रहे हैं टाइम के साथ। सब कैंसर का क्योर बढ़ता जा रहा है। कुछ कैंसर है जिसमें अभी भी ताकत और चाहिए, लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाली साइंस आने वाले टाइम में और सस्ते इलाज लाएगी जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इसका ट्रीटमेंट कर सकें। मैं अपनी रिसर्च टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं और जिस जगह पर मैं काम करता हूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसको भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझे मौका देता है कि मैं सीख सकूं और आपके सामने ये प्रस्तुत कर सकूं जो मैं सीख कर आता हूं अपने मरीजों से इस इंस्टीट्यूट के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर बख्शी। एक्चुअली बड़ी साधारण भाषा में आपने सब समझा भी दिया और कैसे क्या नई थेरेपीज हैं वो भी बता दिया। इट वाज रियली गुड एंड इंस्पायरिंग ऑल्सो, क्योंकि बहुत सीधे और सरल वे में कि हम किस तरह, मतलब ये सरल वे इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सरल व्यवस्थाओं में ये सारी चीजें जो हैं हो जाती। जानकारी ही जिसे कहते हैं ना बचाव है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और मैं मुझे मतलब ये लगता है कि मैं जब हम लोग ने एनएचए में आए तो हमें लगा इतने पैकेजेस और ये सब बने हुए हैं जिनको मतलब इम्पोर्टेंट है कि हम उसको लोगों तक पहुंचाएं तो ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बट ये भी जरूरी है कि अब अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि इतना इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है, चाहे वो सरकार पे हो, इंसान पे हो, किसी पे भी हो। बर्डन तो बर्डन ही होता है। एंड आई वांट कि हमारा कोई भी बंदा जो इस वजह से कोई भी सफरिंग, बट इट वाज वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच। अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो चैट बॉक्स में लिखें। वैसे इतनी सरल टॉक थी और इतनी अच्छी थी, मतलब जैसे ये कहना चाहिए बहुत सरल व्यवस्था, मतलब भाषा में भी समझा दिया गया था। अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो बात करें ना, तो वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉक। हमारे साथ मेरे ख्याल डॉक्टर राहुल भार्गव भी जुड़ गए, तो वो भी आगे जो बात करेंगे हमारे यहाँ ब्लड कैंसर्स पे।
बट इट वॉज रियली गुड एंड एनीबडी धन्यवाद। वांट, बहुत बहुत बट थैंक धन्यवाद। यू सो मच। एक चीज मैं आपसे कहना चाह रही थी कि ये जी जी। बहुत सरल प्रेजेंट तरीके, तो ये एक तो हमारे पास है ही है, मैं शेयर कर लूंगी स्टेट के साथ भी, और जो हमारी बेसिकली आंगनवाड़ीज और ये सब आशा वर्कर्स हैं इनको भी शेयर कर दूंगी। तो जानकारी जी जो जी। है ना वहां पे ये एक तरह से लग जाती है, जैसे एक स्नॉप्स छोटा सा एक पोस्टर में बन गया या किसी भी रूप में बन जाए, तो ये फायदा ही करेगा हमारे लोग। एंड हम चूंकि इंटीरियर से जुड़े हुए हैं लास्ट माइल तक, तो आई मीन टच वुड टू ऑल द गवर्नमेंट, credit goes to the government and PM ऑल्सो, बिकॉज अब हम लोग नीचे तक परकुलेट करना चाह रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं आज हमारे यहाँ हैं। अ, उसको जो है, एक क्वेश्चन आपका दिख रहा है मुझे, कोई प्रिया है, काइंडली गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, प्रिकॉशन फॉर यूरिनरी ब्लैडर, ये है, मैं देख रही हूँ इसमें। तो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का एज सच कोई बहुत ज्यादा प्रिवेंशन करना संभव नहीं है, एक्सेप्ट मैं बोलूंगा स्मोकिंग एक उसका रिस्क फैक्टर है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कभी भी किसी पेशेंट में ब्लीडिंग आती है पेशाब के रास्ते, तो उसका चेकअप जरूर कराएं। कई बार क्या होता है कि मरीज उसका चेकअप नहीं कराता, तो आमतौर पे अगर पेशाब में ब्लड आता है तो एक पाइप डालते हैं पेशाब के रास्ते, और वो चेक करते हैं ब्लैडर में। और आमतौर पे अगर वो जल्दी पकड़ा जाता है तो उस रास्ते से ही उस कैंसर को जला के मार देते हैं, और ज्यादा ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो ये कैंसर ब्लैडर के मसल में घुस जाता है, और तब ट्रीटमेंट कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हीमोफीलिया एंड कैंसर कॉम्प्लिकेशन, सॉरी, मैं समझा नहीं। आप चैट में देखेंगे, हीमो स्ट्रेस ऑल्सो कॉज कैंसर एक ने लिखा है, और एक ने पूछा हीमोफीलिया एंड कैंसर कॉम्प्लिकेशन। सो स्ट्रेस से कैंसर तो नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस से और बहुत सारी चीजें होती हैं। बीमारी हो जाती है। हीमोफीलिया का कैंसर से हीमोफीलिया कैंसर का कारण नहीं है। लेकिन मेरा एक पेशेंट है जिसको हीमोफीलिया है, और उसको साथ में ब्लड कैंसर भी है। तो उसमें हमारी जो प्रिकॉशन ये रहती है कि हमें जब कभी उसके पीठ में या कोई इंजेक्शन देना पड़ता है, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो उसका फैक्टर की कमी है वो ऊपर के लेवल पे हो, जिससे कोई उसको ब्लीडिंग ना हो। ये है। आई होप, सौरभ आपका, हाँ उन्होंने लिखा है कि एक और आ गया है, कैन यू गिव इंसाइट्स ऑन प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन पे बात कर रहे हैं। तो ये आपने सवाल टच किया है जिसको हम जेनेटिक्स इन कैंसर से लिंक करते हैं। तो आजकल क्या है कि एक बहुत सारी बहुत सारे कैंसर में पाया गया है कि उनका कैंसर प्री डिस्पोजिशन फैमिली जीन्स के कारण। उनमें से कुछ जीन्स हैं ब्रैका जीन जैसे होती है। तो यदि ब्रैका जीन पाई जाती है तो हम कहते हैं जो हमें स्क्रीनिंग करनी है कैंसर की, उसको हम बढ़ा देते हैं, ज्यादा इंटेंसिवली करते हैं। यहां तक कि कुछ ऐसी जीन्स भी पाई गई हैं, जेनेटिक जीन्स, यदि वो होती हैं तो इम्यूनोथेरेपी देने का लाभ होता है और कुछ में नहीं होता। तो इसमें ड्रग ट्रीटमेंट का भी रोल पाया गया है कि अगर एक प्रकार की जीन पाई गई तो उस प्रकार का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो नहीं पाई गई तो वो ट्रीटमेंट यूजफुल नहीं होता। सेकेंड इंपॉर्टेंस कि आप एक पर्सन में स्क्रीनिंग ज्यादा करेंगे। ठीक है। एक अगर आपने बहुत पहले सुना होगा, एक फिल्म एक्ट्रेस थी, उनकी उनमें ये जीन थी, तो उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी कराई थी कि ब्रेस्ट कैंसर ना हो। ये पाया गया कि हाँ, आपने ब्रेस्ट कैंसर कम कर लिया, लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग में विश्वास रखते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, तो शायद सर्वाइवल पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इस पर रिसर्च चल रही है। तो ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीन्स के ऊपर आप जानना चाहते हैं, और इसके कई इम्पैक्ट हैं आज की डेट में। आजकल लोग जानकार हो जा रहे हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, बहुत किसी अच्छा। और ने, प्रिया है कोई, वो लिख रही है कि उनके हस्बैंड को कैंसर है और इम्पैक्ट थ्योरी, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन भी है, कि प्रिकॉशंस क्या लिया जाए। तो
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अगर वो बाकी फिट है तो कैंसर की थेरेपी की जा सकती है। अगर फिटनेस लेवल खराब होता है तो कुछ दवाइयां जो हैं ऊपर नीचे करनी पड़ती कि मरीज टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं, ये इसमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। हमारे एक SBLS सिविल हॉस्पिटल के लिख रहे हैं कि रोल ऑफ गामा इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट। गामा में समझा नहीं। एक रोल ऑफ गामा, गामा इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट। एक होती है गामा नाइफ। गामा हाँ। नाइफ थेरेपी यूज आमतौर पे ब्रेन ट्यूमर में की जाती है, जिसको हम कहते हैं रेडियो सर्जरी। यानी आप ब्रेन खोलते नहीं हैं, ओपन नहीं करते, लेकिन रेडियोथेरेपी के द्वारा उस ट्यूमर को टारगेट करते हैं और जला देते हैं। वो एक किस्म की, जिसको कहते हैं रेडियो सर्जरी। ब्रेस्ट कैंसर में इसका रोल मेरी नॉलेज में बहुत ज्यादा नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। धन्यवाद। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से इसी बारे आपसे मुलाकात भी हुई, बिल्कुल। पहली बार मैं आपसे मिल रही हूँ, इसे एक्चुअली वर्चुअली मिल रही हूँ, फर्स्ट टाइम ही जी जी आपसे जी। जानकारी हुई। नाउ वी हैव डॉक्टर राहुल भार्गव। थैंक यू सो मच एंड फॉर योर टाइम। एंड आपकी मीटिंग्स हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप चलिए, अपना मीटिंग्स कंटिन्यू कर लें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक्स। मैं अब राहुल भार्गव जो हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ भी गए हैं। और राहुल के बारे में भी बताना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राहुल जो है इंडिया के वेल नोन हेमेटोलॉजिस्ट में आते हैं, जिन्होंने बहुत सारा काम किया थैलेसीमिया को लेके, सिकल को लेके, हीमोफीलिया को और बहुत सारे ब्लड कैंसर्स को लेके। अभी तक अगर हम लोग बात करें, जो 1200 ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और अपनी जानकारी उनकी, उन्होंने इतने सारे स्टेट्स में, मुझे ये इतनी खुशी होती है सब बताते हुए कि स्टेट्स में जाके कोशिश की कि BMT सेंटर्स खोल सकें। जनरली लोग अपने ही सेंटर को चलाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने BHU जाके BMT सेंटर खोला, उन्होंने उज्जैन जाके, इंदौर जाके BMT सेंटर खोला, उन्होंने जयपुर जाके सेंटर खोला। मुझे वो जान बताने में इतनी हर्ष होता है, क्योंकि कोई अपने काम से समय निकाल के OPDs करता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों तक पहुंच सके। फ्री OPDs कभी गोरखपुर में, कभी मेरठ में, कभी बरेली में होती है, और कभी किसी और शहरों में, MP में होती है, कभी राजस्थान में होती है। मतलब समय का अभाव है आज की तारीख में। सब लोग कहते हैं हमारे पास समय का अभाव है, बट इस समय के अभाव के साथ ही राहुल की जो ये फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज हैं डॉक्टर राहुल की, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। और उसके बारे में मतलब मैं जितना भी कहूँ कम है। तो और अगर अनीमिया की बात करूं, तो मुझे बहुत दिनों पहले याद है कि मैं उनसे, मैम कोई एक अनीमिया डे होना चाहिए। वो सारी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट रही हैं उनके जीवन में कि उन्होंने इतने सारे अवार्ड्स भी मिले, इतने पेपर्स लिखे उन्होंने। और जब लिखते लिखते उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा, लेकिन ये सोचा कि कहाँ से कितना हम बेनिफिट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उनका ये कहना है कि हम, मेरा मतलब, एक बंदा जो है खुदा के रूप में जाना जाता है कि वो मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंचा सके। और जब वो ऐसी शख्सियत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कि लोगों तक पहुंचना, खुद खुद पैदल से चल के जाने, कितने हेल्थ कैंप्स, मुझे खुद भी नहीं पता है कि कितने हेल्थ हेल्थ कैंप्स हुए हैं। अगर हम पेपर्स की बात करें तो पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, मतलब मैं केवल बात करूं कि कितने हैं। पबमेड में भी हैं, तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं राहुल की जब कोई भी क्लिनिकल गाइडलाइंस जब निकलती है, यू विल फाइंड दैट। इवन सफदरजंग में जो हमारा BMT सेंटर खुला, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है राहुल भार्गव को। एंड उनकी जो भी अवार्ड्स, और ये मैं मतलब अगर बताना शुरू करूंगी तो शायद लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, और वो जो टाइम है हमारे बात करने का वो कम हो जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ, बट अपने आप में जो बहुत अच्छी शख्सियत होती है उसके बारे में शायद सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो मैं अब राहुल से दरखास्त भाई कहूंगी कि भाई राहुल, आप अपना टॉक दे, लोगों को जरूर प्रेरित करें, क्योंकि स्टेट से लोग जुड़े हैं एंड दे विल बी लर्निंग मोर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। ओवर टू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। मैं तहे दिल से NHA को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके माध्यम से आज हम अ, ये इतना ज्ञानवर्धक चीजों पे हम आप डिस्कस कर पा रहे हैं। आज से पहले शायद कहीं ना कहीं हम जब भी बात करते थे तो कैंसर एक भयानक तरीके से, भयावह रूप में बात करते थे, और उसके बारे में शायद हम बात भी नहीं करना चाहते थे। शायद कुछ सुगबुगाहट होती थी, बात होती थी, और उसके बाद हम भूल जाया करते थे। आउटकास्ट की तरह देखा जाता था जिन लोगों के बाल गिर जाते थे या जिन लोगों को कैंसर हुआ होता था। बट दोस्तों, आज 2025 में बहुत चीजें बदल चुकी। कैंसर लाइलाज नहीं रहा। कैंसर का इलाज सस्ता, सुंदर, टिकाऊ,
सोफिस्टिकेटेड हो चुका है और दवाइयों का भी दुष्प्रभाव बहुत कम हो चुके हैं। और ये घड़ी जो सुई की घड़ी थी, 0 से उठ के आज 60 से 70% तक दोस्तों पहुंच चुकी है। और जरूरत है हम सब, जब भी हम ये विकास की जब हम बात करते हैं तो ये शायद विकास दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई की हम बातें करते हैं जहां पे हम ये कह पाते हैं कि हाँ ये कांटा उतना मूव कर गया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अवेयरनेस है लोगों में जागरूकता है, लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने सेहत के बारे में जानना चाहते हैं और वो अपने साथ अपने शरीर को दोस्तों प्यार करते हैं, इसीलिए बदलाव आ गया। आज जो एनएचए की मुहिम है, डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव की जो मुहिम है और सरकार की जो मुहिम है कि हम अच्छी बातों को आखिरी सिरे तक, देश की हर सरहद तक पहुंचा पाए, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। और आपने डॉक्टर समीर बख्शी को कैंसर का ओवरव्यू देखते हुए पढ़ा, बट आप देखिए कैंसर क्या, कैंसर, ब्लड कैंसर क्या है, आज हम अगले 15 मिनट में उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हूं, मैं बाकी कैंसर नहीं देखता। शरीर में ब्रेस्ट कैंसर होता है, कोलन कैंसर होता है, हमने आंतों का कैंसर सुना, ब्रेन ट्यूमर सुना, बट अमेरिका में आज से 70 साल पहले एक बीमारी के लिए एक डॉक्टर हुआ। मतलब वो एक बीमारी, वो ब्लड कैंसर है तो उसे वो ब्लड कैंसर देखेगा, ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर देखेगा, कोलन कैंसर है तो कोलन कैंसर देखेगा। उससे क्या होता था, उससे डेप्थ में जाते थे, समझ पाते थे और अनरावल कर पाते थे कि कैंसर क्यों होता है। आज तक हम इलाज करते रहे कैंसर का, पर हमें यह पता नहीं चला कि हमारी पॉपुलेशन में कैंसर क्यों होता है। ये जितने लोग आज 140 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, 200 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनमें से किसको कैंसर होगा, कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? क्या भगवान एक दिन कहेगा कि अच्छा राहुल को लिम्फोमा हो जाए, एक्स को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, वाई को कोलन कैंसर हो जाए? इतना सिंपलिस्टिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। मैं राहुल भार्गव, रुधिर रोग विशेषज्ञ, मैं सिर्फ ब्लड और ब्लड कैंसर को देखता हूं। और अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो ब्लड कैंसर की जब बात आती थी दोस्तों तो रूह कांप जाती थी, जहन में सिरसराहट उठती थी, क्योंकि हमें बता दिया गया था, हमें सिखा दिया गया था कि अब मृत्यु करीब है। ब्लड कैंसर मतलब मृत्यु का संदेश। पर दोस्तों आज 70% लोग ब्लड कैंसर के जीवित हैं। और ब्लड कैंसर कितने प्रकार के हैं? ब्लड कैंसर बहुत प्रकार के हैं। तो जब आज आप 15 मिनट बाद यहां पे जाएं तो एक मैसेज लेके जाइएगा, जहां पे भी, अपने गांव में हो, शहर में हो, किसी बड़े शहर में हो, कस्बे में हो, एक मैसेज लेके जाइएगा कि मुझे ब्लड कैंसर का नाम जानना जरूरी है, कौन सा कैंसर है। क्योंकि जिस प्रकार का कैंसर है दोस्तों, उससे पता चलता है कि मैं कितने आयु जीऊंगा। सीएमएल है तो मैं आराम से 15-20 साल गोली खा के जी सकता हूं। लोग आज भी सीएमएल से डरते हैं, वो वहां से उठ के सीधे एम्स की तरफ जाते हैं। तो मैं पूछता हूं कि क्या दरभंगा से एम्स जाना जरूरी है? क्या सीएमएल का डायग्नोसिस दरभंगा में नहीं हो सकता? उसका उत्तर है दरभंगा में हो सकता है। तो ब्लड कैंसर जो प्रकार है वो 100 से भी ज्यादा है। अब आप देखिए, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड का कैंसर, शरीर में लाल खून होता है, पीला खून होता है, सफेद खून होता है। तो हम एक बात बहुत बार बोलते हैं एनएचए के माध्यम से, हर महिला की यही पुकार, अब की बार हीमोग्लोबिन 12 के पार। जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके घर में वाइफ्स होंगी, बेटियां होंगी, माएं होंगी, अगर वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सोच सकते हैं तो मैं कहता हूं उनको आज उनके हीमोग्लोबिन को 12 के ऊपर भी ले जाने की सोचनी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश से हमारे साथ लोग जुड़े हैं जिसको लाडली बहना योजना में फायदा मिलता है, उसमें से अपने हीमोग्लोबिन को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए 500 रुपए खर्च करना आवश्यक समझना चाहिए दोस्तों। क्योंकि महिला वो इकाई है जो सिर्फ घर नहीं चलाती, वो समाज और देश दोनों चलाती है। लाल खून, पीला खून और सफेद खून, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, एक दिन एक सेल अमर हो गया, एक दिन एक सेल अमर हो गया, उस दिन वो कैंसरस बन जाता है। सफेद खून के कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। हमने लो हीमोग्लोबिन की बात सुनी होगी दोस्तों कि लो हीमोग्लोबिन होता है। कभी हमने क्या ज्यादा हीमोग्लोबिन सुना? हमारे घरों में लोग अक्सर खराटे भरते होंगे तो हमें उनसे पूछा कि उनका हीमोग्लोबिन कितना रहता है, तो हीमोग्लोबिन 12 से 16 तक महिलाओं में, 12 से 16.5 तक, 13 से 16.5 तक पुरुषों में होना अनिवार्य है। तो सफेद खून के कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। शरीर में गांठें होती हैं जिसे लिम्फ नोड कहते हैं, वो हमारे अस्त्र शस्त्र प्रहरी होते हैं कि कोई भी इंफेक्शन आएगा, इंफेक्शन उसको बचाएगा। वो प्रहरी खड़े हुए हैं, वो प्रहरी एक दिन आतंकवादी बन गए।
उस दिन हमारे गांठें बढ़ने लगी। और कोई भी गांठ को हल्के में नहीं लेना। अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी हमारे लोग आशा वर्कर से जुड़े हुए, एक मैसेज है, बी इनटॉलरेंट टू योर बॉडी। अपने शरीर के प्रति आप सचेत होके लड़ने के लिए तैयार रहो। बी इनटॉलरेंट मतलब कुछ चीज सहो मत दोस्तों। और गांव गांव में, घर घर तक ये बात पहुंचानी है कि अगर गांठ है तो उसको डॉक्टर के पास पहुंचना सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक गांठ जीवन को अंत कर सकती है। पर दोस्तों, अगर सही समय पे, जैसे डॉक्टर बख्शी ने कहा था कि अमेरिका और हम में अंतर इतना है कि अमेरिका में 70% कैंसर स्टेज 1 पे पकड़े जाते हैं, हिंदुस्तान में 70% स्टेज 3 स्टेज 4 पे पकड़े जाते हैं। क्यों? इसका कारण सोचिए क्यों? क्योंकि हमें जागरूक होना जरूरी है। ऐसी बातें करेंगे, वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से बातें सुनेंगे, ज्ञानवर्धक बातों को आगे बढ़ाएंगे, तो हम घर घर जाके सत्यनारायण की कथा की तरह बोलेंगे कि दोस्तों आज हमने कथा सुनी है, उस कथा को बांचेंगे और कैंसर को हराएंगे। और ब्लड कैंसर को तो हम जड़ से हटा देंगे। हमारा ब्लड कैंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक दिन सेल ज्यादा बढ़ने लगा, लुकीमिया मतलब सफेद खून का कैंसर, माइलोमा प्लाज्मा सेल्स, शरीर में जो इन लोगों को पीठ में दर्द होता है, अक्सर तरीके से किडनी खराब हो जाती है, या स्लिप डिस्क करके चले जा रहे हैं, उसमें माइलोमा का अंदेशा हो सकता है। जिस दिन खून कम बनना बंद हो गया, ज्यादा बनना ब्लड कैंसर, कम बनना एप्लास्टिक एनीमिया। सो ब्लड कैंसर 10% कैंसरों को सिग्निफाई करता है। और इन्हीं 10% में 70% लोग आज की तारीख में जिंदा रहते हैं। सिम्टम क्या है? बुखार आना, बहरूपिया है। ब्लड कैंसर कौन है? बहरूपिया है। क्या होता है उसमें? बुखार आना, वजन कम होना, बुखार 3 हफ्ते से ज्यादा चलते रहना, बुखार आना, वजन कम होना, गांठों का बढ़ जाना, मुंह से खून आना, पेशाब में खून आना, वजन कम होते जाना, तिल्ली का बढ़ जाना, लेफ्ट साइड पे तिल्ली होती है, राइट साइड में लिवर होता है दोस्तों। स्प्लीन का बढ़ जाना, किसी को अपने गांव में, शहर में स्प्लीन बढ़ी हुई दिखे तो पूछ इसको क्या ब्लड कैंसर हो सकता है क्या? लिवर फेलियर के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारा स्प्लीन बढ़ने का जो होता है वो ब्लड कैंसर होता है। तो ये देखिए कितने प्रकार के ब्लड कैंसर, नाम याद नहीं रखना। आज डिफरेंशिएशन ब्लड कैंसर और कैंसर में है। एक नई चीज बता रहा हूं कि ब्लड कैंसर और कैंसर में हम आज की तारीख में डिफरेंशिएट करके उन डॉक्टरों को देख सकते हैं जो सिर्फ ब्लड कैंसर ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो उसी सीवियरिटी से उनको देखते हैं, उसी सीवियरिटी से, उसी तीव्रता से रिसर्च करते हैं ताकि हम ब्लड कैंसर को हरा पाए। तो ब्लड कैंसर में होता क्या है? सबसे पहले आप डॉक्टर के पास चलते हुए जाते हो, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड वजन कम हो गया, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, बहरूपिया है। कभी उसको ट्यूबरक्लोसिस की दवाई दी जाती है, कभी उसको किसी और चीज की दवाई दी जाती है, पर कोई ये नहीं सोच पाता कि ब्लड कैंसर हो सकता है। और दोस्तों, जिस प्रकार से हम इस युग में रह रहे हैं जहां पे कैंसर किसी को भी हो सकता है, द ओनली वे नॉट टू हैव कैंसर इज नॉट टू बी बॉर्न। अगर हम जन्म नहीं लेते कैंसर में, तो हमारा जन्म नहीं होता, तो कैंसर नहीं होता दोस्तों कहीं ना कहीं। पर हम जन्म तो ले लिया, अब कैंसर भी होगा, तो कैंसर होगा तो उसको हम इलाज करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्लिनिकल हिस्ट्री से आदमी जाता है बीमारी के साथ में, उसका डॉक्टर एग्जामिन करता है। सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट अपने गांव में, शहर में, अपने नगर में सीबीसी का ब्लड टेस्ट को पॉपुलराइज कराइए दोस्तों, कि ब्लड कैंसर में एक सिंपल टेस्ट जो आपको ब्लड कैंसर के बारे में बता सकता है, जो हीमोग्लोबिन के बारे में बता सकता है, जो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण को बता सकता है, वो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट को अगर मैं पैथोलॉजिस्ट की आंखों से देखूं तो ये चीज दिखती है दोस्तों, जिसमें हमारे को बुरे सेल दिख जाते हैं। हमारे को कैपेसिटी अगर बिल्डअप करनी है, हमने जिस प्रकार के उम्दा डॉक्टर इस देश में विकसित किए हैं, हमें लेबोरेटरी को भी उतनी उन्नत तरीके से आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि एक स्लाइड और 3 ml खून आपको यह बता देता है कि मेरा ब्लड का कौन सा प्रकार का कैंसर है। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह फ्लो साइटोमेट्री है, जिसके ऊपर, सेल के ऊपर कौन से प्रकार के एंटीना लगे हैं, उनको पकड़ के मैं ल्यूकीमिया को, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक को भी बी और टी। अब देखिए, जैसे जैसे हम बीमारी को समझते जा रहे हैं, उसको हम फर्दर रिफाइन करते जा रहे हैं, क्योंकि हर बीमारी अलग अलग है। हर ब्लड कैंसर जब हो रहा है वो अलग अलग है। उसके बाद किसी ने जीनोमिक टेस्टिंग की बात की थी। मैं कहता हूं दोस्तों, आज की तारीख में जन्म पत्री के साथ जीनोमिक पत्री जरूर टेस्ट करें।
शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच जिस प्रकार से जरूरी है, हम ये हैं, हम एनएचए के साथ मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे और 2030 तक ये कल्पना करेंगे कि देश में थैलेसीमिया का नया बच्चा कोई भी पैदा ना हो। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप सब लोग सब समृद्ध हैं, जब शादियों में जाएं तो इस बार थैलेसीमिया का गूंज जरूर उठाएं कि हमें हर बच्चे की शादी के बाद और बच्चा पैदा करने से पहले थैलेसीमिया की जांच करना आवश्यक होना चाहिए, ताकि हम अपने देश से थैलेसीमिया 2030 तक हटा पाए। और वही बात मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग दोस्तों ये बताता है कि रजनी करुणा से कैसे अलग होगी, करुणा विश्वासी से कैसे अलग होगी, अनुषा राहुल से कैसे अलग होगी, क्योंकि हम सबकी बीमारी उस जेनेटिक मेकअप के अनुसार है। अच्छी या बुरी वो बात की बात है, पर जेनेटिक टेस्टिंग आज की देश में रियलिटी बनती जा रही है। हम बात करते हैं कि बहुत महंगी है दोस्तों, अगर अमेरिका में जो चीज 1 लाख रुपए की होती है वो हिंदुस्तान में आज शायद 12-15 हजार रुपए में होती है। जिस चीज पे हमें टेस्टिंग के बेसिस पे, जिसपे हमारा ट्रीटमेंट निर्भर है लाखों करोड़ों रुपए का, टेस्टिंग के लिए हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं इस माध्यम से कहूंगा, वेबिनार के माध्यम से, टेस्ट मोर एंड ट्रीट लेस। टेस्ट मोर ट्रीट लेस मतलब ज्यादा टेस्टिंग करें, ट्रीटमेंट उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि उस इंसान को, राहुल भार्गव को पैन बम की जरूरत नहीं है, सिलेक्टिव टारगेटेड थेरेपी की जरूरत है। और उसके बाद आता है ट्रीटमेंट विथ ट्रांसप्लांट एंड द टीम। जैसे डॉक्टर समीर बख्शी जी ने कहा था, कीमोथेरेपी से डर लगता था लोगों को। डर क्यों लगता था? 3 चीजों से डर लगता था। महंगी दवाई होगी, दवाई का दुष्प्रभाव होगा, दवाई के माध्यम से हम और बुरा हो जाएगा। पर आपने सोचा कि 2025 में जब मैं वेबिनार के माध्यम से आप पूरे देश में जुड़े हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दवाई क्यों नहीं अच्छी हुई होगी, दवाई क्यों नहीं सुदृढ़ हुई होगी? तो आप आज की तारीख में हम टारगेटेड मेडिकेशन की तरफ पहुंच गए, जिसने हमारे को ये फ्रीडम दी कि हम बाकी आसपास के सेल्स को छोड़ दें और सिर्फ कैंसर सेल को ही मारे। कीमोथेरेपी स्मार्ट हो गई, सुदृढ़ हो गई, सस्ती हो गई। आज गरीब आदमी भी देश में सर उठा के शान से अपनी कीमोथेरेपी करा पा रहा है एनएचए के माध्यम से, प्राइम मिनिस्टर हमारी जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके माध्यम से। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, जैसे आदरणीय विनीता श्रीवास्तव जी ने कहा, उनके पिछले अवतार में जब वो ब्लड सेल में थी, उन्होंने पूरे देश के डॉक्टरों को इकट्ठा किया, सम्मिलित किया, और इंदौर में मेडिकल कॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जहां से 50 से 60 लोग, 120 लोग फ्री बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। ईएसआई फरीदाबाद हो, जो जबलपुर, बीकानेर हो या पटना हो, उनके माध्यम से सरकार ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक मुहैया कराया। तो आज की तारीख में सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं, टर्शरी केयर सेंटर, टर्शरी हेल्थ केयर भी, जो हर इंसान को, देश के नागरिक को, वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, वो ले पाता है। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आगे बढ़ने लगा। टारगेटेड थेरेपी के बारे में बात हुई। टारगेटेड थेरेपी भले ही महंगी है, बट अगर मुझ पर जेनेटिक टेस्टिंग है तो मैं बता सकता हूं कि कौन सी टारगेटेड थेरेपी किसको काम आएगी। और आज की तारीख में कार टी सेल, आज भले ही अमेरिका में 1 करोड़ रुपए का होता हो, आज हिंदुस्तान में वो 25 से 30 लाख रुपए में उपलब्ध होने लगा है। तो आज की तारीख में देखिए, डायग्नोसिस जल्दी करेंगे, ट्रीटमेंट कम करेंगे, पैसा कम लगेगा, आउटकम अच्छा होगा। तो ये नॉलेज का फायदा क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा नॉलेज का फायदा ये है कि हम इलाज तक मरीज को जल्दी पहुंचा पाए, हम इलाज के लिए सही डॉक्टर के पास मरीज को जल्दी पहुंचा पाए। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर वो पेरीफ्री में कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार से लेके एम्स तक जब तक वो पहुंचता है, वो कम से कम लाख रुपया खर्च कर चुका होता। रिपीटेड टेस्ट, मल्टीपल डॉक्टर, सबने अपना अपना सोच लिया, पर क्योंकि उसने कैंसर नहीं सोचा तो उसका इलाज नहीं हुआ दोस्तों। सो लिमिटेड एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड केयर। तो एनएचए के माध्यम से मेरा आह्वान रहेगा आप सबसे, आप सबको जल्द से जल्द अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने रिश्तेदारों में किसी को भी सुबगाहट हो ब्लड कैंसर की, तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, ताकि हम उनका कम से कम पैसे में, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका फ्री में इलाज करके उन्हें ब्लड कैंसर से हारने का एक मौका दें।
Late diagnosis is the major problem for all of us, and lack of awareness amongst us and amongst my colleagues that still the blood cancer is a death sentence. नहीं दोस्तों, ब्लड कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है. प्लीज मेरा निवेदन है, आज की तारीख में इस हैप्पी जगह को देखिए, 70% लोग सर उठा के ब्लड कैंसर को हरा पा रहे हैं. इम्पैक्ट ऑफ पीएमजेवाई ऑन ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट, लोग बढ़ गए, लोग जल्द से जल्द आने लगे, क्योंकि अब उनको डर नहीं था कि डॉक्टर के पास पैसा खर्चा होगा. उन्हें इलाज मुहैया होने लगा, वही सोफिस्टिकेटेड जो इलाज जो अभी तक शायद सिर्फ अमीर, कुछ चुनिंदा अमीर लोग ले पाते थे, आज वो गरीब से गरीब आदमी उसको ले जा पा रहा है. तो जिसकी वजह से हमें दिख रहा है, वो मेरठ हो, गोरखपुर हो, बरेली हो, बहुत तादाद में ब्लड कैंसर के मरीज अपना नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हैं. फ्यूचर डायरेक्शन एक ही काम रहेगा, अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर. दोस्तों, मैं इस देश का नागरिक हूं, भले ही फोर्ट्रेस में बैठा हूं, पर मैं इस जमीन से और अपने लोगों से जुड़ा हुआ हूं. अभी मैं गोरखपुर से उतर के सीधे एयरपोर्ट से आप ही के सामने समक्ष होने आया, ताकि ये बता पाए कि कोई पब्लिक प्राइवेट नहीं है. दिल हमारा हिंदुस्तानी है और हम हर मरीज का इलाज करने के लिए सक्षमता से खड़े हैं, ताकि कोई भी मरीज ब्लड कैंसर से ना हारे. अपॉर्चुनिटीज, टेलीमेडिसिन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रोबस्ट टीम, वो आशावाड़ी वर्कर हो, प्राइमरी हेल्थ केयर का डॉक्टर हो, सेकेंडरी टर्शरी केयर के अस्पताल हो, ब्लड कैंसर के मुहिम में अगर हमें हराना है तो हम सबको हाथ मिला के चलना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज दिस इज द टीम विच मेक्स द डिफरेंस. दिस इज द टीम ऑफ डॉक्टर, जिसमें 5 पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट, 4 एडल्ट हेमेटोलॉजिस्ट, 1 जेनेटिसिस्ट, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, ये डॉक्टर इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है डॉक्टर नेहा, ये डॉक्टर आस्था है हेमेटोपैथोलॉजिस्ट है, सो सिर्फ ब्लड और ब्लड कैंसर की पैथोलॉजी को देखती है. ये डॉक्टर विकास दुआ है, पीडियाट्रिक के हेड है, डॉक्टर अरुण है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं जो कि सिर्फ ब्लड कैंसर के मरीज देखती हैं, डॉक्टर चित्रेश हैं, ये एक बीमारी देखते हैं. इसी प्रकार से अगर हम देखें, ये सब लोग मिलके, डॉक्टर निखिल हैं, डॉक्टर अनुषा हैं, रिसर्चर्स हैं, सब मिलके साझा कर रहे हैं कि हम अपने देश के लिए वो स्वर्ण अवसर ला पाए, जहां ब्लड कैंसर को शायद हम आगे चल के रोक पाए, पर जब तक नहीं रोक पाते तब तक हम उसका सक्षमता से इलाज करके ब्लड कैंसर को हरा पाए. धन्यवाद. डॉक्टर राहुल, थैंक यू वेरी मच. और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत लोगों ने हाथ उठाया हुआ है. नंदन, जरा सा क्वेश्चंस ले लीजिए सारे. नंदन, लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया उनको Yes, yes, अनम्यूट करिए. yes, yes, yes. So, Visesh ji, you can unmute from your side. Vishwasi ji, you can unmute from your side. Karuna Kumari, you can unmute from your side. Karuna Kumari, you can unmute from your side. हमारी आवाज नहीं जा रही क्या उन तक? हाँ हाँ जा रहे हैं. रजनी जी, you can unmute from your side. डॉक्टर अरुण ने लिखा है कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल बस्तर कंकर में हूँ, छत्तीसगढ़ हाँ. में. देखिए I'm मैं, working. बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें बार 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 अपने राजनेता हो, कलेक्टर हो, अपने संबंधित लोग हो, उनको एक ही बात करनी पड़ेगी कि इस देश में एक ही चीज सिर्फ अनलिमिटेड है, एक ही चीज असीमित है, वो है भगवान का प्यार. बाकी सब चीजें लिमिटेड हैं. उस लिमिटेड पैसे में मुझे अगर अपने नागरिकों का अच्छा करना है तो मुझे प्रिवेंशन पे काम करना ही पड़ेगा. हमारे साथ आज जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं आपसे भले ही ये बात कहूंगा कि सिर्फ 1 सेकंड का याद रखना कि मुझे ब्लड कैंसर या कैंसर का इलाज बहुत अच्छा है, बट जरूरत मुझे क्या चीज की है, इस देश में रेवोल्यूशन किस चीज की लानी है, वो है अवेयरनेस की. वो ये बताने की कि ब्लड कैंसर लाइलाज नहीं है, अपने को स्क्रीनिंग कराना जरूरी है. इस बात पे हमें ज्यादा जोर देना आवश्यक है. तो इंपॉर्टेंट चीज हम सब मिलके, ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर अरु, ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं, ये हम सब की प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर मैं राहुल भार्गव, जिसको छाती में दर्द हो, वो ये सोचता है कि मैं तो राहुल भार्गव हूं, मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती. पर दोस्तों, बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है. कोई इम्यून नहीं है, ना आप इम्यून है, ना मैं इम्यून हूं.
कोई जीता जागता इंसान इम्यून नहीं है कि उसे बीमारी नहीं हो सकती। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, अपने शरीर को प्यार करने लगेंगे, हम उस दिन स्क्रीनिंग की तरफ खुद अपना कदम बढ़ाएंगे। जब तक नहीं बढ़ाते तब तक हमें उनसे बात करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। Is there a high chances of spreading cancer from carcinogenic substance and what are the steps to prevent? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसमें लेड हो, एस्बेस्टोसिस हो, जहां पे सिलिका हो, कोल माइनर्स हो, उनमें लंग कैंसर, पेट का कैंसर बढ़ने की आवश्यकता रहती है। बट भारत सरकार अपना दायित्व निभा रही है कि फूड में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सिक्योर रखे, सो दैट कोई भी कार्सिनोजेनिक हमारी डाइट चार्ट में ना आ पाए। तो जब तक वो नहीं आता, तो अल्कोहल की बात करी, टोबैको की बात करी, उसको हम छोड़ सकते हैं, तो हमारे को उसको छोड़ना चाहिए। बट नहीं छोड़ पा रहे, एटलीस्ट जांचें करना तो स्टार्ट कर दीजिए। अपना माउथ खुलवा के किसी भी डॉक्टर के पास जाके कैंसर तो देख लीजिए कि कैंसर है या नहीं। और रही बात जेनेटिक्स की, दोस्तों अगला दशक जो है वो सारा जेनेटिक बेस्ड होगा। आज जितना हम ब्लाइंडेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगले एक दशक में सारा ट्रीटमेंट जेनेटिकली इंस्पायर्ड होगा कि मेरा जीन अंशु जी के जीन से डिफरेंट है, उसके माध्यम से दोनों का इलाज अलग अलग हो, ऐसी व्यवस्था हमारी आएगी। Anshu Rani ji, you can unmute from your side. Anshu Rani. Anshu Rani ji, इसीलिए you can unmute from your side. somebody has asked, is myeloma type of a blood cancer or not? Yes, myeloma is a type of a blood cancer which originates in the bone from the plasma cells. शरीर के अंदर खाली जगह होती है जिसे बोन मैरो कहते हैं, उसमें से वो उजागर होता है और अपनी किडनीज को, बोन्स को अफेक्ट करता है दीमक की तरह। माइलोमा का साइंस क्या है? बहुत ही सिंपल है। किसी को बैक पेन बहुत दिनों से चल रहा हो, तो बैक पेन के लिए प्लीज मल्टीपल माइलोमा में एक ब्लड टेस्ट होता है, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसका नाम है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, SPE, इसको कराना जरूरी होता है। एक क्वेश्चन और था कि हाउ मेनी परसेंटेज केसेस कार्सिनोमा प्रोस्टेट गेट क्योर्ड, ये पहले शायद पूछा गया होगा, मिस तो हुआ। कार्सिनोमा प्रोस्टेट में अगर मैं क्योर मानूं, मैं 10 साल मानूं कि कितने लोग 10 साल तक जीवित रहेंगे, तो 90% लोग 10 साल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयां आ चुकी हैं। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज ये समझना जरूरी है कि अमेरिकन आदमी, यूरोपियन आदमी 90 साल तक नहीं मरना चाहता। वो निरंतर रूप से आविष्कार कर रहा है, निरंतर रूप से खोज कर रहा है, शोध कर रहा है कि वो कैंसर की परत बाय परत हटा पाए। इसीलिए अगर जो इंसान मल्टीपल माइलोमा में या प्रोस्टेट कैंसर में 2028 में जिसकी बीमारी आती है, उसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट होता है 2025 से। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि आने वाला समय कैंसर के लिए डेथ सेंटेंस है, ना कि कैंसर हमारे डेथ सेंटेंस है, ये जानना आवश्यक है। और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लें, कि फिर बार बार राहुल जी से मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कह रहे हो कि आपके पास ऑप्शन है और आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाई है कि आपको कुछ जानकारी करनी हो, आप चैट पे लिख सकते हैं या आप अपने आप को अनम्यूट करके भी। एक और क्वेश्चन है राहुल आपके लिए। राहुल आपके लिए एक और क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट सरकोमा? सार्कोमा, सर सार्कोमा एक एग्रेसिव जिसका इलाज कीमोथेरेपी के माध्यम की जगह सर्जरी और रेडियोथेरेपी से होता है। तो सार्कोमा को पिकअप करना इंपॉर्टेंट है। कोई भी गांठ हो पेट में, बच्चों में या एडल्ट साइड पे, उसको पिकअप करना जरूरी है, उसकी बायोप्सी करना जरूरी है। और एक और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको एक बात और, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता, बायोप्सी कराने से बीमारी का पता चलता है। पेट स्कैन से एक्सटेंट पता चलता है, बायोप्सी से उसका नाम पता चलता है कि बीमारी का नाम क्या है। जैसे मेरा नाम राहुल भार्गव लिखा हुआ है ना, यहाँ पे विनीता मैम लिखा हुआ है, स्वर्णिम लिखा हुआ है, तो सब में वैसी बायोप्सी से नाम पता चलता है। दोनों दोस्तों प्लीज बायोप्सी के लिए लोगों को एनकरेज कराएं, सो दैट हम उनका इलाज प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर नाम के साथ कर पाए। स्वर्णिम प्रभात,
कुछ पूछना चाह रहे हैं नंदन, इनको वो करो, अनम्यूट करो। So you can unmute from your side. Surname Hello, Prawad, yes. good afternoon, sir. Hello, may I hear to you? Hello, हाँ, आप पूछ हाँ, सकते हैं। बोलिए स्वर्णिम। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ हाँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर ने अभी कहा कि 2018 में अगर कैंसर होता है तो मैं ट्रीटमेंट का जो लेवल था आज के लेवल से डिफरेंट है। हम्म। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि 2030 तक अगर हम लोग रिसर्च में अच्छा से इन्वॉल्व कर दे खुद को और इंडल्ज होकर अच्छा से रिसर्च करें, तो सर कोई ऐसा है जो बेस्ट क्योर हो, जो तुरंत ठीक करने की कोशिश करे? काफी अच्छा सवाल है। देख सोनिया, आज से पहले भी कार टी सेल नहीं थी पता, आज से पहले हमारे को इम्यूनोथेरेपी नहीं पता, तो पिछले एक दशक में अपन ने कितनी सारी नई चीजें लाए ना। इसीलिए भारत यस सर। सरकार आपको प्रेरित करिए कि रिसर्च करो। आप मेरे सेल को निकाल के बिल्कुल तोड़ फोड़ करके उसके अंदर देख लो कि है क्या, क्यों हुआ कैंसर। यस मेरी सर। रेडिएशन मेरी रेडिएशन की वजह से हुआ, एनवायरमेंट की वजह से हुआ। जब हम जानेंगे तब तो ज्यादा बेहतर ट्रीट कर पाएंगे। यस अब सर। सर्विकल कैंसर हम क्यों बोल रहे हैं 2030 तक एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि सर्विकल कैंसर पे हमें पता चल गया कि एचपीवी से होता है, एचपीवी यस। से होता है। फिर हमने वैक्सीन बना ली, वैक्सीन अब लगाना स्टार्ट कर दिया मेल फीमेल में, देखना क्योर हो जाएगा। और सर जैसे ऑन्कोजीन्स के बारे में पहले क्वेश्चन किए थे, प्रोटो ऑन्कोजीन जो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द रेडिएशन एंटी इफेक्ट ऑफ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस सर। सर तो इसमें हम लोग को तो पता नहीं रहेगा सर, कुछ हमारे बॉडी में हो रहा है बाद में ही पता चलता है, तो सर इसमें कैसे अपने आप को बचाएं? तो हम देख आज की तारीख में इतने ब्लाइंडेड है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं यस पता सर। क्या होगा। आज की टेक्नोलॉजी में अगर एक साल की बात बताऊं, जर्मनी में कैंसर टेस्ट आ रहे हैं जो आपके मिथाइलेशन सिग्नेचर से डिसाइड कर लेते हैं कि आपके पास सर्कुलेटिंग फ्री ट्यूमर फ्री सर्कुलेटिंग डीएनए है या नहीं है। तो जैसे जैसे साइंस बढ़ेगी तो आप, मैं जाऊंगा लैब में हर 6 महीने में कि भैया सर्कुलेटिंग डीएनए देख लो है या नहीं। सर्कुलेटिंग डीएनए, ट्यूमर डीएनए मिल गया, मैं कैंसर ढूंढने लगूंगा। तो ये सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें आखिरी इंसान तक कैसे पहुंचेंगी स्वर्णिम, इसको भी हमें सोचना है। टेक्नोलॉजी हाँ। बहुत तेजी से बदल रही है, इसीलिए हम्म। अपने बारे में समझना, अपने को रिसर्च में इंडल्ज करना, वो लोगों को साथ रखना इसलिए जरूरी है। यस अच्छा, सर। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? वो कॉस्ट ऑफ एसपी तो फॉर मल्टीपल माइलोमा लिखी गई है, 650 रुपीज जो लिखा हुआ है, तो इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट ऑल्सो, एंड दैट इज कैन बी टेकन अप। वो आप ले सकते हैं इसको भी, कॉस्ट मतलब यू वांट फॉर द स्क्रीनिंग, वो हो सकती है। और कोई क्वेश्चन हो आपका? और किसी का कोई क्वेश्चन है? संध्या जी, आपने तो लाखों करोड़ों रुपए की बात पूछ ली कि कौन जिम्मेदार है कैंसर के लिए, पर मैं ये बता सकता हूँ कौन कौन जिम्मेदार नहीं है। ना आपके कर्म कैंसर को लेके है, ना आपकी किस्मत है, ये दोनों चीजें जिम्मेदार नहीं है। बट करोड़ों रुपए इस बात पे लगाए जा रहे हैं कि हम ये जान कि कौन सा कैंसर किस वजह से होता है। जैसे हमने कहा सर्विकल कैंसर एचपीवी से होता है, ओरल कैंसर टोबैको से होता है, तो हम उसके बारे में जानते हैं संध्या जी। बट बहुत सारे कैंसर क्यों होते हैं उसको अभी हम नहीं जानते, पर शोध चल रहा है। ये बहुत मतलब क्वेश्चन बड़ा लगता है कि कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार हम सब खुद होते हैं भाई। उसमें बहुत सारी चीजें शुरू में बात आई गई कि भाई आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्यों वेट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें बताई गई, तो उन सब चीजों का ध्यान रखिए। और किसी को कोई क्वेश्चन? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई और सुनना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कुछ और, या कोई और जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है? ठीक है। सो थैंक यू डॉक्टर राहुल, ये बहुत अच्छा सेशन था और बहुत सरल। मजा तब आता है कि जब आदमी जो है इंटरैक्ट करे, उसको इंटरेस्ट आता तभी वो इंटरैक्ट करता है, अदरवाइज वो इंटरैक्ट नहीं करता है। सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मतलब आज इतना समय के बाद भी, इतना इतने व्यस्त रहने के बाद भी आज ज्वाइन किया, मतलब सबको संबोधित किया और सबको सब तक जुड़ गए सब लोग। अभी भी मैं देख रही थी काफी लोग जुड़े हुए हैं, अब धीरे धीरे वो फीडबैक फॉर्म और उस पे जाते ही लोगों को कहते हैं कि बस अब हम नहीं देंगे क्योंकि हमको तो अपनी जानकारी मिल गई।
बट थैंक यू सो मच एंड इट वाज वेरी इनलाइटनिंग, क्योंकि क्या होता है कि ना जब हम आदमी सब आपस में बात करते हैं तो इट इज मोर इजियर फॉर अस टू इंटरैक्ट एंड लेट पीपल अंडरस्टैंड। ये जो आपका, मुझे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और चाहिए होगा जो मैं, चूंकि स्टेट्स में भेजते हैं और हम स्टेट्स में भेज के मतलब उसका बेनिफिट ये होता है कि लोगों को जानकारी अच्छी मिल जाती है। उसमें से कुछ लोग एक्सट्रैक्ट करके अपनी कुछ आईसी मटेरियल बना लेते हैं, कुछ पोस्टर्स बना लेते हैं उन्हीं में से जो। एंड ये यूजफुल इसलिए होता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फुल प्रूफ, जिनको जानकारी है वही इसकी बचाव की भी बात कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, कई बार मैंने देखा कि जो आईसी स्टेट्स में हो रही होती है वो सही तरीके से नहीं हो रही होती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इनको मैंने कई भाषाओं में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की है कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, तो हिंदी में हो जाए, और हिंदी के साथ साथ ऑल लैंग्वेजेस में। जब मैं ट्राइबल में थी मैंने ट्राइबल लैंग्वेजेस में बहुत सारा काम करा है। तो अभी भी हम लोग के पास मौका है कि हम इनको उन्हीं लैंग्वेजेस में, आईसी को उस लैंग्वेज में कर सके, लोग अपने प्रिवेंशन पे काम कर सके। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड रियली इट वाज ग्रेट। इसी बहाने हम लोग ने एनएचए की ओर से हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने कुछ एक बीड़ा उठाया है कि हम लोग समय तक रहते लोगों तक पहुंच सकें, और जो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ रहा है इस चीज का उसको हम थोड़ा कम कर सकें। जानकारी ही बचाव है बार बार कहते हैं, बट लोग समझ नहीं पाते इसे। सभी माध्यम में टेस्टिंग हो जाए, हमारी स्क्रीनिंग हो जाए और हमें सही ट्रीटमेंट मिल जाता है समय रहते, तो हमारी बहुत सारी चीजों की, मतलब हम लोगों की जान भी बचाते हैं। और एक जान नहीं होती है क्योंकि पूरी फैमिली इम्पैक्ट होती है। एक बीमार तो होता नहीं है, उसमें पूरा घर इम्पैक्ट होता है, और पूरी घर के इम्पैक्ट होने से अगर हम गरीबों की, मतलब मैं नीचे देख रही थी ट्राइबल एरियाज में चुकी रही हूँ, एक फैमिली में एक बंदा बीमार होता है, उसके जो, अगर बच्चे को है या वाइफ को है तो उसके हस्बैंड के वेज लॉस होते हैं, चीजें बहुत इम्पैक्ट होती हैं। तो अगर इस तरह की मतलब व्याख्यान जाते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ता है सिस्टम पे, और लोगों को एनएचए में जो पैकेजेस अवेलेबल है उनकी भी जानकारी होती है, और लोगों का सिस्टम पे विश्वास बढ़ता है। लोगों को, आपको आपका, अगर आप अलाउ करेंगे तो हम आपका मेल आईडी जो है मैं लोग डाल दूंगी, सो पीपल कैन इंटरैक्ट विथ यू, सो इट इज इजियर फॉर एवरीबडी टू इंटरैक्ट विथ यू। तो वो समय रहते आपको बुला भी पाएंगे, या कोई आपसे आपसे कंसेंट लेना चाहे, या आपसे मिलना चाहे, या कोई और भी चीजें कुछ अपने यहाँ कराना चाहे, तो इट कैन बी इजियर फॉर देम टू डू दैट। Sure. Sure. Thank और you, ma'am. ये बल्कि झारखंड से भी कुछ लोग जुड़े थे, तो वो ये चाह रहे थे कि एक नेक्स्ट टॉक उनके यहाँ, अपने यहाँ ही उनके मतलब कैंपस में हो सके, एंड दे कैन इनिशिएट सम स्क्रीनिंग एक्टिविटीज ओवर देयर। वो आपसे, वो लोग खुद ही, मैं आपका मेल आईडी और वो सब दे दूंगी, तो दे विल कनेक्ट विथ यू एंड डू द नीडफुल। बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली गुड टू हियर फ्रॉम यू एंड डॉक्टर बख्शी बोथ। थैंक यू सो मच। नंदा, आप जो हैं उनको सबको फीडबैक दे दीजिए, और उसके बाद जो है डॉक्टर राहुल, आप अपना समय जो है उतना दिया, थैंक यू सो मच, दैट्स वाज ग्रेट, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much, man. Really, the session was really interesting. Going into Yellow Pragade Subbarao, who was in the Quiet India movement and have discovered many vaccines for the country. So there are many people those who are contributed to this field. So thank you, everyone. Thank you for joining this webinar. So a link has been shared in the chat box. So this link is all about the feedback. In the feedback, if you do have any queries or any type of sessions you want further from NHA, you can write on that. So it is requested from the participants, those who are there, please fill the feedback form or any type of suggestions for our upcoming webinar. So it is helpful to us. So thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much, man.